Welcome back, students. Previously, we were talking about the physiology of the stomata, that is the opening and closing of stomata, which is regulated by the inward movement of water. Okay. Whenever the guard cells become turgid, the stomata become open. Whenever the turgidity is lost, the guard cells become closed or the stomata become closed. Okay. So the opening and closing of stomata was best explained by the scientist Leavitt. That's why his best theory was named upon him, that is the Leavitt's theory or active potassium pump theory. Why it is called active potassium pump theory? Because in the opening and closing of stomata, the potassium ions play an important role. Okay. If I summarize the fact about the potassium, so whenever the potassium ions enters into the guard cells, the stomata open. This thing to be remembered. And whenever the guard cells does not enter or even leave the guard cells, then the stomata become closed. So that's why stomata or the potassium ions are very important in regulating opening and closing. That's why this theory was also called active potassium pump theory. So let's just discuss this most important and the most validated theory. So it was given by, as the name suggests, mainly the Leavitt and Raschke in 1974. They said that opening and closing of stomata depends upon the potassium ions concentration that I have just discussed, concentration of the protons or the H positive ions. That is also dependent upon the pH, undoubtedly. That is also dependent upon the COD concentration as well as the light. So it depends on many factors, but the most important factor is the potassium ions. So let's just discuss this theory in detail. So firstly, let me clear some or let me summarize this theory in very quick way so that you can understand it in detail or a better way. So what Leavitt suggested is that suppose these are the guard cells. Okay, guard cells are right now flaccid. Stomal pore is not broader. ठीक है, stomal pore broader नहीं है. So what happens is the starch inside these guard cells. Okay, the starch inside these guard cells does not break down into the sugars. The starch inside these cells broken down into the malic acid. स्टार्च जो है मैलिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे ही दिन होता है. मैलिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है मैलेट एनायंस में और प्रोटॉन्स में, यानी कैटायंस में. ठीक है, इसका डिसोसिएशन हो गया. अब गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड के डिसोसिएशन की वजह से प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, यानी कैटायंस ज्यादा हो गए. ठीक है, फिर होता है एक आयन एक्सचेंज थ्योरी. कुछ आयंस अपने एक्सचेंज में दूसरे आयन के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो क्या होता है, ये प्रोटॉन्स बाहर मूव करते हैं, इफ्लक्स होता है इनका. ठीक है, और इनके बदले में आते हैं पोटेशियम सिमिलर चार्ज के. ओके, अब क्योंकि प्रोटॉन्स बनते ही जा रहे हैं, मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ है, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया. तो एक्सचेंज में तो आए क्या, पोटेशियम आयंस आ गए. फिर भी सेल के अंदर पोटेशियम चार्ज क्या है, अभी भी सॉरी पॉजिटिव चार्ज अभी भी ज्यादा है, क्योंकि डिसोसिएट होके क्या बने हैं, प्रोटॉन्स बने हैं. तो इनको बैलेंस करने के लिए बाहर से क्लोरीन एनायंस भी आते हैं. पोटेशियम के साथ साथ कुछ क्लोरीन भी आते हैं. तो क्लोरीन जो है उनका नंबर बहुत कम होता है, मेजरली पोटेशियम का ही रोल है, क्योंकि पोटेशियम अंदर आ रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ दी प्रोटॉन्स. अब जैसे ये पोटेशियम आते हैं, ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज फ्री रहेगा, मैलेट एनायंस भी फ्री रहेंगे, तब तो क्लोरीन की कोई जरूरत ही नहीं है. तो जैसे ही ये पोटेशियम आता है, ठीक है, ये बाइंड कर जाता है इसके साथ, मैलेट एनायन के साथ. ठीक है, तो मैलेट एनायन के साथ जब ये बाइंड करता है तो ये बना लेता है मैलेट कॉम्प्लेक्स, मैलेट पोटेशियम कॉम्प्लेक्स. ये जो मैलेट पोटेशियम कॉम्प्लेक्स है, ये बनने के बाद सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई गार्ड सेल्स के अंदर. पहले जो स्टार्च था, अब पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बन गया. सपोज ये पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज हो गई. एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज. तो पानी जो है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, द एंडोस्मोसिस स्टार्टेड. and until the and unless the endosmosis is started, so the guard cells become turgid
and the stomata become open. Okay, so potassium ions are required for increasing the rigidity because they are exchanged with the protons or the hydrogen. ठीक है, जैसे ही पोटेशियम आते हैं दे फॉर्म मैलेट कॉम्प्लेक्स बाय रिएक्टिंग विद मैलेट एनायंस, जिसकी वजह से सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. पोटेशियम आयंस के इनवर्ट मूवमेंट में एक हार्मोन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन. दैट्स व्हाई द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा is helped by the hormone cytokinin. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है which hormone helps in the stomatal opening, that will be cytokinin. क्लोजर में AB हेल्प करता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट ओपनिंग में साइटोकाइनिन हेल्प करता है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ओपनिंग. सो ड्यूरिंग डे टाइम सी द गार्ड सेल्स, द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड. ठीक है, गार्ड सेल्स में जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो स्टार्च जो है उसका ब्रेकडाउन हुआ हेक्सोज शुगर्स में. इंटरमीडिएट है ये, ध्यान रहे. शुगर्स क्विकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गए मैलिक एसिड में. ठीक है, यानी फाइनली मैलिक एसिड बनता है, ना कि शुगर्स. वी रिमेंबर दिस थिंग. फिर मैलिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होता है. ठीक है, मैलिक एसिड डिसोसिएट होता है मैलेट एनायंस में प्लस प्रोटॉन्स में. ये प्रोटॉन्स में डिसोसिएट हुआ और मैलेट एनायंस में. दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड. नाउ उन प्रोटॉन्स का क्या होता है, देखिए जो प्रोटॉन्स फॉर्म हुए बाय डिसोसिएशन ऑफ द मैलिक एसिड. ठीक है, मैलेट एनायन बने और प्रोटॉन्स बने. तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज कर जाते हैं पोटेशियम के साथ. पोटेशियम अंदर आ जाएंगे, प्रोटॉन्स बाहर चले जाएंगे. ओके, जितने प्रोटॉन्स जाएंगे उतने ही पोटेशियम अंदर आएंगे. ये जो एक्सचेंज होता है ये एक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए एक्टिव पोटेशियम पंप बोला जाता है. एक तरह का ये पंप है. हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में पढ़ते हैं, कैरियर प्रोटीन्स पढ़ते हैं हम. ठीक है, तो वहां पे हम पंप पढ़ते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम पंप. तो ऐसे ही हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है. यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले पोटेशियम अंदर आ रहे हैं. ठीक है, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट है ये, एक अलग डायरेक्शन में है, एक अलग डायरेक्शन में है. दो मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं तो ये है आपके बाइपोर्टर या को ट्रांसपोर्टर्स. एक साथ दो का जब ट्रांसपोर्ट होता है. को ट्रांसपोर्टर्स में एक होते हैं सिम्पोर्टर. अगर दोनों बाहर जाए या दोनों अंदर आए तो ये होते हैं सिम्पोर्टर. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. अगर एक बाहर जाए और एक अंदर आए या वाइस वर्सा, एक अंदर आए दूसरा बाहर जाए, तो ये होता है एंटी ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे एंटी ट्रांसपोर्ट है, प्रोटॉन्स बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम अंदर आ रहे हैं. एक्टिव प्रोसेस है, इसलिए जो है आपका एलटीपी चाहिए और साइटोकाइनिन हेल्प करता है इसमें. ठीक है, इनवर्ट मूवमेंट ऑफ पोटेशियम में. अब पोटेशियम आए तो भाई उससे क्या हो, पोटेशियम आने के बाद ये एनायन से, मैलेट के जो एनायन थे उनके साथ ये जो है बाइंड कर लेते हैं. ठीक है, जैसे ही बाइंड किया तो इन्होंने बना लिया मैलेट पोटेशियम कॉम्प्लेक्स. ये क्या बनाते हैं, मैलेट पोटेशियम कॉम्प्लेक्स. मैलेट तो एनायन थे और पोटेशियम उनके साथ रिएक्ट हो गया. ये कॉम्प्लेक्स बनने से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा गार्ड सेल्स के अंदर. ठीक है, और इस प्रोसेस के बाद पीएच जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, मैलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका पीएच बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 7, इसीलिए अल्कलाइन पीएच हो जाता है. देखिए ये बात जो बताई थी आपका शेयर ने. ठीक है, शेयर की बात भी कहीं ना कहीं सही है कि अल्कलाइन पीएच हो गया ड्यूरिंग ओपनिंग, क्योंकि अब स्टोमेटा ओपन होंगे. तो हमारा जो मैलेट कॉम्प्लेक्स बना, एक्सेस ऑफ पोटेशियम को क्लोरीन बैलेंस करता है, यानी पोटेशियम के अलावा क्लोरीन भी आ सकते हैं भैया एनायन. ठीक है, ऑल्दो नंबर कम होता है, इक्वल अमाउंट में नहीं आते. So along with the potassium, chlorine ions are also transported. चलिए नेक्स्ट टाइप बात करते हैं. तो जो मैलेट एनायन है उन्होंने पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बना लिया. अब पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ये सेल सैप में एंटर करेगा. सेल के अंदर था अभी, सपोज ये पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स है. सेल का सैप जो होता है किसी भी प्लांट सेल का मेनली वैक्यूल होता है, तो ये वैक्यूल के अंदर चला जाएगा. इसी के अंदर वाटर है, इसी के अंदर सारे सोल्यूट्स हैं. ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे गया तो सेल सैप के अंदर ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन को हाईली इंक्रीज कर रहा है, दिस मैलेट कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से सराउंडिंग सेल से वाटर अंदर आना शुरू हो गया और गार्ड सेल्स टर्जिड होके क्या हो गए, स्टोमेटा ओपन. क्योंकि एंडोस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल्स टर्जिड हुए और किडनी शेप्ड हो गए स्टोमेटा. ठीक है, किडनी शेप का मतलब इस तरह से हो गए स्टोमेटा गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से स्टोमल पोर क्या हो गया, ब्रॉड. So this was the mechanism given by the Leavitt for the opening of stomata. I think this should be clear to you. Now we will discuss about the closing.
Here firstly we will summarize. In the light means during daytime starch is converted into the malic acid. Malic acid का dissociation होगा, ठीक है. Influx and efflux of cations. Efflux होगा हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का, इनफ्लक्स होगा पोटेशियम का. पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी वजह से सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, एंडोस्मोसिस होगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे. ओके, हियर इज द फिगर दैट इज बीइंग just explaining this phenomena. The hydrogens are moving outside, sorry, the protons are moving outside, whereas the potassium are moving inside. It is a ATP regulated process. Along with the potassium, some chlorine ions are also exported inside the cell. These potassium enter inside the cell sap. वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं, देखिए, ठीक है. वैक्यूल में स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ था मीनवाइल फॉस्फोइनोल पायरुवेट में. फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक्सेप्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स द मैलेट, ठीक है. यहाँ पे देखिए प्रोटॉन्स, कहने का मतलब है मैलिक एसिड डिसोसिएट होता है, जो प्रोटॉन्स है वो तो बाहर चले जाते हैं, प्रोटॉन्स तो एक्सचेंज हो ही रहे हैं ना भाई. और जो मैलेट है, मैलिक एसिड जैसे ही डिसोसिएट हुआ, मैलेट एनायंस में और कैटायंस में, कैटायन तो एक्सचेंज कर लिए गए, उनके बदले पोटेशियम आ गए, तो वो पोटेशियम इस एनायन से बाइंड कर गया और पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बना लिया सेल सैप में, जिसकी वजह से सेल सैप के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई, वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई और एंडोस्मोसिस हुआ, जिसकी वजह से टर्जिडिटी इंक्रीज हुआ और स्टोमेटा ओपन हो गई. Now we'll discuss about the mechanism during night time. So let me quickly summarize it, then we will discuss in detail. नाइट के टाइम में देखिए क्या होता है, स्टोमेटा एक्यूमुलेटेड है, सॉरी पोटेशियम एक्यूमुलेटेड है गार्ड सेल्स के अंदर. जब तक पोटेशियम आ रहे हैं, पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स भी बनता जा रहा है, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज ही रहेगी, ठीक है. इसका मतलब वाटर आता ही रहेगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल तो यहाँ डिक्रीज्ड है. बट नाइट के टाइम में देखिए क्या होता है, नाइट के टाइम में CO2 यूज करना बंद कर देती हैं प्लांट सेल्स, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो CO2 एक्यूमुलेट होती है जैसे ही गार्ड सेल्स में, तो CO2 वाटर के साथ मिलके बना लेती है कार्बोनिक एसिड. अब क्योंकि एसिड बन गया, गार्ड सेल्स हो गई एसिडिक, भाई सेयर ने सही कहा था, एसिडिक में तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है. बट उन्होंने जो है स्टार्च शुगर को ही सपोर्ट किया था, उन्होंने ये नहीं बताया कि शुगर्स में कन्वर्ट नहीं होती, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होती है स्टार्च, ठीक है. अदरवाइज उनकी थ्योरी भी कहीं ना कहीं सही थी. तो जैसे ही एसिडिक हुआ मीडियम, अब एसिडिक मीडियम प्रमोट करता है एक हार्मोन की फॉर्मेशन, दैट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड हार्मोन. डॉर्मिन भी बोला जाता है या स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है. स्ट्रेस कंडीशंस में ये स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, जैसे सपोज पानी नहीं है, ड्रॉट कंडीशन है, सूखा है, उस टाइम स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे, तो ये बेनिफिशियल भी है प्लांट के लिए हार्मोन, ठीक है. ऑल्दो नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ये ग्रोथ नहीं कराते हैं, ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी बेनिफिशियल. सो इट इज आल्सो कॉल्ड डॉर्मिन, डॉर्मेंट स्टेज में रखता है चीजों को. तो ABA बन गया भाई, एसिडिक पीएच हुआ CO2 की वजह से, कार्बोनिक एसिड बना नाइट टाइम में और ABA की फॉर्मेशन हुई. अब ABA जो है ये इनहिबिटर है पोटेशियम आयंस का, ये पोटेशियम आयंस को अंदर नहीं आने देगा पहली बात तो, सेकेंड थिंग बाहर भेजेगा वापस. अब जो प्रोटॉन्स का एक्सचेंज हो रहा था उसको ये टर्मिनेट कर देगा, प्रोटॉन्स एक्सचेंज नहीं होंगे, ठीक है. प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होंगे तो पोटेशियम अंदर नहीं आएंगे, और जो इवन अंदर है उनको बाहर भेज देगा, तो पोटेशियम बाहर भेज दिए गए तो मैलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मैलेट पोटेशियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है. वापस से वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई क्योंकि सॉल्यूट नहीं बने, तो पानी अगर अंदर ही ज्यादा हो गया तो दोबारा से पानी बाहर चले जाएगा. जो एक्सेस ऑफ वाटर अंदर था, जो दिन के टाइम में बहुत सारा पानी अंदर था जिसकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड थी, वो वापस बाहर चला गया. गार्ड सेल्स अगेन लॉसेस टर्जिडिटी, टर्जिडिटी लॉस कर देती है गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, फ्लैसिड, ठीक है. और स्टोमल पोर जो है वो वापस से क्लोज हो जाता है. So this was the mechanism during night time. So let's just study in detail. So during night time there will be no photosynthesis. The CO2 will not be utilized by photosynthesis, so CO2 will react with the water to form the carbonic acid. Okay, thus decreasing the pH to form acidic. pH हो गया acidic. Acidic pH forms the AB hormone. AB hormone is a stress hormone. इसको stress hormone भी बोलते हैं. ड्रॉट कंडीशंस में स्ट्रेस है, ये भी एक तरह का, भाई देखिए फ्लड हो, ज्यादा वाटर हो या ड्रॉट हो, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वाटर स्ट्रेस है प्लांट के, दोनों ही कंडीशन में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा. तो जहां पे पानी नहीं है वहां पे ट्रांसपिरेशन को कट करने के लिए ये स्टोमेटा को क्लोज ही रखते हैं, क्योंकि AB है तो स्टोमेटा क्लोज है ना, क्योंकि AB पोटेशियम को इनहिबिट कर रहा है. अभी मैंने बताया AB जो है पोटेशियम को इनहिबिट कर रहा है, तो जब भी AB डाल देंगे आप लीफ में, उसके स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह भी काम करता है एब्सिसिक एसिड. खुद CO2 भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट है,
ठीक है, मैंने एग्जांपल में बताया भी था। अगर CO2 ज्यादा है तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, एंटी ट्रांसपिरेशन हुआ ना, ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट करा, एंटी है। AB है तो भी एंटी ट्रांसपेरेंट है। ओके, सो अब AB क्या करता है, ये इनहिबिट करता है पोटेशियम आयन को। मैलेट पोटेशियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एक्सचेंज नहीं होंगे आयंस, ठीक है, कैटायंस जो है आपके वो एक्सचेंज नहीं होंगे, तो अगेन सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगी, तो पानी वापस से बाहर ही जाएगा, अंदर से बाहर नहीं आएगा, दस क्लोजिंग द स्टोमेटा। क्योंकि टर्जिड नहीं है गार्ड सेल्स, तो आपका स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ओके, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दी अर्लियर डायग्राम आल्सो। जब भी टर्जिड नहीं है तो स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गए। So this was the about opening and closing of stomata. The rejected theories were not important according to the exam point of view, but the Leavitt active potassium pump theory is individually asked in the 8 marks question, essay type question, or there are many MCQ questions are also asked in this topic. So that's all for the opening and closing of stomata. Keep doing best. Have a nice day.